All right, so we will continue with our tradition of revising what we learned in the last session. तो हमने कल स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ वेक्टर। उसमें सबसे पहला वेक्टर हमने देखा था जीरो वेक्टर, जिसको आप नल वेक्टर भी बोलते हो। तो इफ यू रिमेंबर, zero vector is a vector with zero magnitude but a direction. So any vector which has zero magnitude but has some direction is called a zero vector. हमने एग्जांपल देखा था वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ स्टेशनरी पार्टिकल। उसमें मैंने बताया था कि रॉकेट है, रॉकेट इज स्टेशनरी ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड। अभी तक इसने टेक ऑफ किया नहीं है, राइट? तो इसका वेलोसिटी जीरो है, लेकिन जब भी ये टेक ऑफ करेगा तो ऊपर जाएगा। मतलब वेलोसिटी वेक्टर v bar is zero bar here, magnitude zero but a given direction. Such a vector is called as zero or null vector. फिर हमने एक सेकंड टाइप का वेक्टर देखा था, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर, एंड इफ यू रिमेंबर, रिजल्टेंट वेक्टर क्या था? रिजल्टेंट वेक्टर is a single vector which gives you net effect of all the vectors combined together. So अगर आपको याद होगा, हमारे पास एक वेक्टर था a bar starting from some point O to A. फिर हमारे पास दूसरा वेक्टर है b bar from A to B. Okay, this is b bar, this is a bar. तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो एक सिंगल वेक्टर है, जो पहले वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होता है और दूसरे वेक्टर के एंड पॉइंट पे खत्म होता है। ओके, so it starts from tail of first vector and ends at head of second vector r bar. So resultant vector is a single vector first of all. तो डिफाइन कैसे किया था आपने? आपने हुआ था the resultant of two or more vectors is a single vector which produces the same effect as that of all the vectors combined together. मतलब a bar और b bar ने मिलके दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो है वो एक सिंगल वेक्टर ही कर रहा है, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर r bar. मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, आप O पॉइंट से A पॉइंट पे गए, फिर A से B पे गए, तो फाइनली आप O से B तक पहुंचे। मतलब मैं O to A जाऊं एक वेक्टर, A to B जाऊं दूसरा वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का जो इफेक्ट है, कंबाइंड इफेक्ट है, वो आपको सिंगल वेक्टर r bar दे सकता है, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो ये हमने कल किया था। देन वी टुक third example, which is negative vector or opposite vector. Negative or opposite vector. So negative or opposite vector क्या था? So a negative vector of a given vector. Negative vector define करने के लिए पहले आपको एक वेक्टर दिया होना चाहिए। For example, a bar is given to you. So negative of a bar, negative vector of a bar, okay, is another vector b bar which has same magnitude but opposite direction. तो a बार का नेगेटिव या फिर अपोजिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड a बार जितना ही है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। So negative vector of a given vector is a vector with same magnitude but opposite direction. तो a bar is negative of b bar and b bar is negative of a bar. और इसको लिखते वक्त आप कैसे लिखते हो? You write it down like a bar equal to minus b bar या फिर b bar equal to minus a bar. Okay, right. Then हमने देखा था fourth type of vector which was equal vector या फिर equal vectors. Equal vectors. अब दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? लेट अस से मेरे पास एक वेक्टर है a bar and we have another vector b bar. तो a बार और b बार इक्वल कब होंगे?
So two vectors a bar and b bar are equal if and only if, condition number 1, they should have same magnitude. Condition number 2, they should have same direction. Condition number 3, they should represent same physical quantities. So two vectors a bar and b bar are said to be equal vectors if and only if these two vectors have same direction, have same magnitude, and they represent same physical quantity. दोनों displacement, दोनों velocity, दोनों acceleration, तो दोनों के दोनों acceleration होने चाहिए. Okay, so this is all what you learned in the last session. Now, today going ahead with next type of vector, that is position vector. So कल हमने, if I am not wrong, in the last session we saw up to equal vectors, right? So today we will start with next type of vector, which is position vector. Position vector. Okay. अब अगर आपको याद होगा last session में I told you that if you want to specify location of some point P, अगर हमें किसी P point का location specify करना है तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, हम एक coordinate system लेते हैं. We associate some origin. ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गई. हम इस पॉइंट P का पोजीशन बताने के लिए हम पहले x कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करते हैं. हम बोलते हैं ये x कोऑर्डिनेट हो गया. फिर हम y कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करते हैं. फिर हम बोलते हैं that the position of this particular point P is x, y. Right? तो इन जनरल अगर आपको एक पॉइंट का पोजीशन बताना है तो आप उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू स्पेसिफाई करते हो. अगर 3 डायमेंशन में होगा तो आप जेड कोऑर्डिनेट भी स्पेसिफाई करोगे. तो ये भी इंपॉर्टेंट है. अगर पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे है, जैसे पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है, तो इसका पोजीशन बताने के लिए आप सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट बता दो. सिंपल. अगर वो पॉइंट y एक्सिस पे है, वो अगर y एक्सिस पे है, तो टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट P आप सिर्फ y कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करते हो. राइट? तो यहाँ पे आप लिखते हो P ऑफ x, 0, या सिर्फ P ऑफ x भी लिखते हैं उसको. यू कैन जस्ट राइट डाउन P ऑफ x. इसको लिखोगे P ऑफ 0, y, या सिर्फ P ऑफ y. So if the point lies on a single line, you need only one coordinate to specify its location. But if the point is in 2 dimension, अगर point एक plane पे है, जैसे आपके बुक के ऊपर है, बुक का पेज है, पेज पे एक पॉइंट है, उसका लोकेशन बताने के लिए आपको 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी. अब अगर हमारे पास एक पॉइंट है जो 3 डायमेंशंस में है, x, y एंड z, x, y एंड z, तो आपको P पॉइंट का लोकेशन स्पेसिफाई करने के लिए x, y, z 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी. ओके, सो यू सी हाउ थिंग्स आर चेंजिंग. जब 1 डायमेंशन पे पॉइंट था, एक लाइन पे पॉइंट था, तो आपको x की जरूरत पड़ी ओनली 1 कोऑर्डिनेट. जब 2 डायमेंशन में आया तो 2 कोऑर्डिनेट, जब 3 डायमेंशन में आया तो 3 कोऑर्डिनेट. तो दिस इज व्हाट यू नीड. नाउ हम पोजीशन को एक और तरीके से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं. ये तो स्कूल में आपने सीखा है, x, y, x, y, z. ओके, बट नाउ यू कैन actually
specify position of a point with a vector, तो आप वेक्टर की हेल्प से भी कर सकते हो। आपको सिर्फ करना इतना है दैट आपको ओरिजिन से उस पॉइंट P तक एक वेक्टर ड्रॉ करना है। दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन। पोजीशन अगर आपको किसी भी पॉइंट का विद द हेल्प ऑफ वेक्टर स्पेसिफाई करना है तो वो वेक्टर हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होके उस पॉइंट पे खत्म होना चाहिए जिस पॉइंट का पोजीशन आप स्पेसिफाई कर रहे हो। तो such a vector is called as position vector and it is always denoted by r bar, small r bar। जैसे कैपिटल R हम लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर के लिए रिजर्व किया है, वैसे ही स्मॉल r, स्मॉल लेटर्स, मैंने आपको बताया था एक बार कि स्मॉल लेटर्स दे आर रिजर्व फॉर सम स्पेशल पर्पस। तो स्मॉल लेटर के ऊपर बार मतलब पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके, तो अगर मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट होता A, उसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से A पॉइंट तक मैं लिखता A बार। अगर मेरे पास यहाँ पॉइंट होता B, उसका पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट B आई कैन राइट डाउन B बार। ओके गुड। तो इन जनरल जब एक ही पॉइंट है आपके पास, सिर्फ P पॉइंट है, उसका पोजीशन बताना है तो R बार यूज कर लो। एक से ज्यादा पॉइंट है जैसे P पॉइंट और Q पॉइंट होता तो आप इसको बोलते हैं P बार और इसको बोलते हैं Q बार। ओके, तो in general R bar is used to denote position vector। okay, तो position vector क्या है? It is a vector which basically gives you position of a particle। all right, this vector always starts from origin and ends at the point where you want to specify position। ओके, इसका मतलब वेक्टर का जो टेल है वो ओरिजिन पे है और वेक्टर का जो हेड है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट P पे है। तो डिफाइन कैसे करोगे आप? डिफाइन करना तो पड़ेगा। तो आप बोल सकते हो अ वेक्टर which gives position of a particle with respect to origin of a chosen coordinate system is called as position vector of that point। It's called as position vector of that point। okay, या फिर of that particle। so vector which gives position of a particle with respect to origin is called as position vector of that particle। क्योंकि हम नॉर्मली मोशन की जब बात करेंगे तो हम बोलेंगे पार्टिकल अभी यहाँ पे है, थोड़े टाइम के बाद वहां जाएगा, तो जब वहां जाएगा उसका पोजीशन वेक्टर क्या है स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो अ वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, हमेशा वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट कॉल दिस एज अ पोजीशन वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो विद रिस्पेक्ट टू सम चोजन ओरिजिन, okay, with respect to some chosen coordinate system is called as position vector of the particle, right? And as I told you, it is denoted by r bar। it is denoted by r bar। okay, then of course in the figure above r bar, which is equal to OP bar, is the position vector of particle at point P। Good। So simple सा case है, extremely simple case। So you need to just
keep this in mind. A vector which gives position of a particle with respect to origin of a chosen system. chosen क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी मर्जी I can take xy axis anywhere I want. मैं यहाँ पे भी xy रख सकता था, मेरी मर्जी. तो इसलिए वहां पे लिखा गया है कि पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चूजन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके, बिकॉज एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट सेशन, मैंने आपको बताया भी था, आप घर पे अभी बैठे हो, लेक्चर देख रहे हो सकता है आपके पास, आपके सामने टेबल है, उस पर ग्लास रखा है, उस ग्लास का पोजीशन बताना है, पोजीशन वेक्टर आप ड्रॉ करोगे, तो कहाँ से बताना है, तो कहाँ से बताना है, आपसे उस ग्लास का डिस्टेंस कितना है, या रूम के कॉर्नर से उस ग्लास का डिस्टेंस कितना है. तो पोजीशन बताने के लिए आपको पहले ओरिजिन, पॉइंट ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, कि मेजरमेंट कहाँ से ले रहे हो. तो दैट इज इंपॉर्टेंट हियर. यू हैव टू फर्स्ट चूज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, and from origin of that coordinate system you draw a vector to that point. Okay, good. अगला वेक्टर है यूनिट वेक्टर. ओके, मान लो एक सिचुएशन लेते हैं हम लोग. लेट अस से दैट आप रास्ते पे खड़े हो. ओके, यू आर स्टैंडिंग, then there comes a motorcycle या फिर कार, जो भी है. ओके, एंड द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल, उसने आपसे पूछा कि मुझे शिवाजी पार्क जाना है. मान लो शिवाजी पार्क जाना है ना, शिव तीर्थ, दिस इज व्हाट यू कॉल. ओके, राइट. आप जहां पे खड़े हो वहां से शिव तीर्थ का डिस्टेंस है मान लो 1 किलोमीटर. मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ लेना. राइट, बट आपको पता है म्युनिसिपैलिटी, महानगर पालिका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो भी उसी डायरेक्शन में है, तो कॉर्पोरेशन भी वहीं पे है, डायरेक्शन में. फिर आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 1 किलोमीटर कॉर्पोरेशन के डायरेक्शन में जाओ, ट्रैवल और गो 1 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ कॉर्पोरेशन. मतलब डायरेक्शन के लिए आपने एक वेक्टर यूज किया जो कॉर्पोरेशन की तरफ पॉइंट कर रहा था. राइट, डायरेक्शन के लिए, मैग्नीट्यूड नहीं. मैग्नीट्यूड आपने उसको बता दिया 1 किलोमीटर. राइट, तो ये सिंपल एग्जांपल है. अब यूनिट वेक्टर क्या है, ज्यादा इजीली समझेगा. तो मैं आपको वापस एग्जांपल बता रहा हूँ. There was someone who was asking you direction to go to शिवाजी पार्क, और आपको पता है कि उस डायरेक्शन में आप आगे जाओगे तो कॉर्पोरेशन का बिल्डिंग आता है. Then you said go 1 kilometer in the direction of corporation. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, महानगर पालिका के डायरेक्शन में जाओ, लेकिन 1 ही किलोमीटर जाओ, 2 नहीं, 1.5 नहीं, 1.2 नहीं, 1.9 नहीं, 1 किलोमीटर. अब ज्यादा इजीली समझेगा आपको. मान लो ओ पॉइंट से, ये ओ पॉइंट है, यहाँ पे एक और पॉइंट है ए पॉइंट. ओके, देन ये डायरेक्शन हो गया ओ ए बार, ये वेक्टर हो गया ओ ए बार. ओ ए बार, जिसको मैं कैपिटल ए बार बोल रहा हूं. राइट, ओके. हमको एक नया वेक्टर चाहिए. उस नए वेक्टर का डायरेक्शन should be direction of a bar. The direction of the new vector should be direction of a bar, but magnitude 1. हो सकता है इस a बार का मैग्नीट्यूड, हो सकता है इस a बार का मैग्नीट्यूड 5 हो, 5 यूनिट्स हो. यूनिट्स क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो मैग्नीट्यूड ऑफ a बार विल बी 5 मीटर. अगर a बार वेलोसिटी वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 5 मीटर पर सेकेंड. अगर ये a बार एक्सेलरेशन वेक्टर है तो यू विल हैव दिस एज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस ऐसा होगा. राइट, गुड.
तो मैंने इसलिए 5 यूनिट्स लिखा है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये फोर्स वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये एक्सीलरेशन वेक्टर है, ये इन जनरल कोई भी वेक्टर है, इसलिए मैंने 5 यूनिट्स लिख दिया। व्हाट वाज आवर रिक्वायरमेंट, हमें करना क्या था, हमें करना ये था, हमें ए बार की डायरेक्शन में एक नया वेक्टर चाहिए जिसका डायरेक्शन तो ए बार हो लेकिन मैग्नीट्यूड 1 हो, राइट? तो उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर in the direction of a given vector but magnitude 1. So a vector in the direction of a given vector with magnitude 1 is called as unit vector. अब यूनिट वेक्टर भी वेक्टर है और नॉर्मल वेक्टर भी वेक्टर है, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो डिफरेंशिएट हम ऐसे करते हैं, सिंबल। यूनिट वेक्टर को लिखने के लिए थोड़ा सा तरीका अलग होता है। आप लिखते हो u मतलब यूनिट, किसका यूनिट वेक्टर? ए बार का यूनिट वेक्टर, तो आप लिखते हो u सफिक्स a और इसके ऊपर डाल देते हो कैप। तो नॉर्मली जैसे बार आपको बताता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वैसे कैप आपको बताता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, राइट? सो अ वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 1 इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैप ऑन द हेड। या तो ऐसा लिख सकते हो u ऑफ a, यूनिट वेक्टर ऑफ a, ओके? या आप लिखने के लिए ऐसा भी लिख सकते हो a कैप, या फिर आप स्मॉल a कैप भी लिख सकते हो, राइट? गुड। तो एज आई टोल्ड यू, ये नोटेशन का पार्ट हो गया, ua कैप और a कैप। दिस इज हाउ यू डिनोट यूनिट वेक्टर। बट as I told you, what is a unit vector? Unit vector is a vector in a given direction with magnitude 1. मुझे a बार की डायरेक्शन चाहिए, तो मैंने लिख दिया a बार, तो मैंने लिख दिया यूनिट वेक्टर ऑफ a बार इज इक्वल टू a बार, विच इज करेक्ट? नो, नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि a बार का मैग्नीट्यूड कितना था? 5। तो मुझे ए बार के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा टू गेट अ यूनिट वेक्टर। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं ये, बिकॉज इट्स इन वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब मैं नंबर्स के साथ समझाऊंगा तो ज्यादा इजीली समझेगा। हमारे पास एक वेक्टर है ए बार जिसका यूनिट है 5 और एक डायरेक्शन है, सम डायरेक्शन, ओके? तो you have some direction here. मैं इसको लिख देता हूं x बार, मान लो x बार is some direction। मुझे एक वेक्टर चाहिए जो a बार की डायरेक्शन में हो लेकिन मैग्नीट्यूड चाहिए 1। बट प्रॉब्लम है ना, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन तो a बार का लेने के लिए a बार लिख दिया, पर a बार का मैग्नीट्यूड 5 है, 1 नहीं है, 1 करना पड़ेगा। फिर क्या करूंगा मैं डिवाइड बाय 5 करूंगा। मैं एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करूंगा। क्यों? क्योंकि ए बार क्या था? 5x बार बाय 5, 5 कैंसल, बन गया क्या? अ वेक्टर विथ यूनिट मैग्नीट्यूड। ओके, सो we'll take once more and then note it down. Problem. What is the problem? Problem ये है, we need a vector, okay, with unit magnitude, मतलब magnitude 1 with unit magnitude। इसलिए मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशन में पहले ही बता दिया था आपको। यूनिट मतलब 1, यूनिट रेडियस मतलब रेडियस की वैल्यू 1, यूनिट एरिया मतलब एरिया की वैल्यू 1, ओके, राइट? सो वी नीड अ वेक्टर विद यूनिट मैग्नीट्यूड but direction of a given vector a bar, but direction of a given vector a bar। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, ए बार को उठाओ, उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो यू गेट अ न्यू वेक्टर
इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार बट मैग्नीट्यूड 1, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर डिनोटेड बाय यू ए कैप और सिंपली ए कैप, राइट। सिंपल सॉल्यूशन था, सिंपल प्रॉब्लम का सिंपल सॉल्यूशन था। हमारे पास ए वेक्टर है, हमको उसके डायरेक्शन में नया वेक्टर चाहिए विथ मैग्नीट्यूड 1। हो सकता है ए वेक्टर का लेंथ 5 हो, मैग्नीट्यूड 5 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, 100 हो, 1000 हो, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। हाउ डू टेल डायरेक्शन? जैसे मैंने बताया, आपको शिवाजी पार्क जाना था, यू सेड गो 1 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, राइट। तो सीधा सीधा बोल देते हैं ना आप, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आपके पोजीशन से कॉर्पोरेशन तक का वेक्टर अगर ओसी बार सी बार है, तो अगर उसको फिजिक्स पता होता, राइट, या फिर मैथ्स पता होता, तो आप उसको बोलते सी कैप, समझ जाता वो। सी कैप, डायरेक्शन ऑफ कॉर्पोरेशन 1 किलोमीटर, डन। ओके, सो दिस इज हाउ यू बेसिकली डिफाइन यूनिट वेक्टर। हम लोग लिख लेंगे पहले एक बार, एंड देन I will repeat once again क्योंकि easy है। A vector having unit magnitude, a vector having unit magnitude in a given direction, in a given direction is called as unit vector, is called as unit vector. Okay, of course in that direction, ओके। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। पहले मैं एक वेक्टर दिखा देता हूँ ए बार। सो लेट्स से दिस इज अ वेक्टर ए बार। दिस इज द वेक्टर ए बार, ओके। ओ ए बार है ये वेक्टर। मुझे इसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए, तो थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, so you will understand in a better way. I want another vector in the direction of a bar but magnitude 1. So I want this particular vector with magnitude 1, मतलब मुझे u a cap चाहिए, okay. So example, for example, let a bar be a non-zero vector. Of course, a bar non-zero vector होना चाहिए। हाँ, अगर a bar के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो a bar should be non-zero vector. So let a bar be a non-zero vector. The unit vector u a cap in the direction of a bar, in the direction of a bar is given by, जैसे मैंने आपको बताया, एक वेक्टर लो, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दो। So to define unit vector, what you have to do is you have to take that vector and divide that vector by its own magnitude. उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दो। तो दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग ए, यू ए कैप या फिर सिंपली ए कैप। आपके ऊपर है, आपको ए कैप लिखना है, यू ए कैप लिखना है, आपको क्या नाम देना है वो तो आपके ऊपर है। ओके, गुड, राइट। अब इसका यूज बहुत ज्यादा आता है यूनिट वेक्टर का, क्यों? अब मैं थोड़ा सा चीजों को फिजिक्स के साथ कनेक्ट करूंगा। अभी तक हम मैथमेटिकल बैकग्राउंड बना रहे हैं। अल्टीमेटली क्वेश्चन तो ये आना ही चाहिए ना कि व्हाई आई एम लर्निंग वेक्टर्स। सी इफ यू वांट टू डू वेल इन साइंस, तो वन थिंग इज फॉर श्योर, यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस कि मुझे कहाँ लगने वाला है ये, वेयर डू आई नीड दिस, ये मुझे
कैप क्यों लिखूं, बार क्यों लिखूं, यूनिट वेक्टर क्यों लगेगा, मैं बता देता हूं आपको क्या है। मान लो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। मान लो, अब अज्यूम हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो ओरिजिन पे है, ओके। अब ऑब्जेक्ट को, बॉल को मैंने किक मार दिया, मान लो, और बॉल एक्स डायरेक्शन में मूव हुआ और उसका न्यू पोजीशन आ गया। लेट अस से दिस इज 3, सम वैल्यू 3, ये ओरिजिन था, ये डायरेक्शन है x, ये z, ये y। तो हम क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 3 मीटर अलोंग x एक्सिस, है ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 मीटर अलोंग x एक्सिस, करेक्ट। कितना ज्यादा लिखने हैं हम लोग। तो अब मैं x एक्सिस के लिए एक यूनिट वेक्टर डिस्क्राइब कर देता हूं। मैं बोलता हूं कि अगली बार से मुझे अगर ऐसा बताना होगा कि डायरेक्शन x एक्सिस है, तो मैं बोल दूंगा आई कैप। तो आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। मुझे अगर बताना होगा y डायरेक्शन, तो मैं बोलूंगा j कैप। j कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन। मुझे अगर बताना होगा z एक्सिस, z डायरेक्शन, तो मैं बोलूंगा k कैप। k कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। तो अगली बार से अगर मैंने लिखा s बार इक्वल टू 3 मीटर i कैप, या तो मीटर मत भी लिखो चलेगा, या फिर आप लिख दो 3 i कैप मीटर तो भी चलता है, 3 i कैप मीटर। तो यू शुड इमीडिएटली अंडरस्टैंड 3 मीटर आई कैप मतलब वो जो बॉल है वो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ अलोंग एक्स एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस। उसके अगेंस्ट में सिर्फ बोल दो 3 आई कैप मीटर, बात खत्म, डन, सिंपल सिंपल। अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा था अलोंग वाई एक्सिस और उसका डिस्प्लेसमेंट है मान लो 4, तो आप बोलोगे 4 जे कैप, खत्म, 4 जे कैप मीटर, डन। अगर वो अलोंग जेड मूव हो रहा था और उसका फाइनल पोजीशन जेड एक्सिस पे था मान लो 5, तो आप बोल दोगे 5 के कैप मीटर। समझ गया कि वो जेड एक्सिस में, जेड की डायरेक्शन में 5 मीटर आगे गया है। अगर ऐसा हो सकता है ना, अभी हम तो रियल लाइफ में जीते हैं, तो रियल लाइफ में तो आपको पता ही है 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है, यू नो दिस। तो ये बॉल 3 डायमेंशन में भी तो मूव हो सकता है, इट कैन मूव इन 3 डायमेंशंस, इट कैन बी समवेयर हियर, राइट। हो सकता है कि वो एक्स डायरेक्शन में 3 मीटर आगे गया था, वाई डायरेक्शन में 4 मीटर आगे गया है, जेड डायरेक्शन में 5 मीटर आगे गया है। तो आप क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट इज 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, और उसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दोगे आप ओरिजिन से तो उस पॉइंट तक। ये आ गया पोजीशन वेक्टर। तो व्हाट डू वी डू इज, to specify direction, here onwards we will be using I cap, J cap, K cap। अब मैं आपको रियल लाइफ में लेके जाता हूँ। ये तो एक नॉर्मल चीज हो गई, अब इसके आगे याद रखना x एक्सिस मतलब I cap डायरेक्शन। तो मैं अभी हर बार स्पेसिफाई नहीं करूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा पार्टिकल इज मूविंग अलोंग x डायरेक्शन, मैं बोलूंगा I cap। Particle has covered a distance of 10 meter along z axis, 10 k cap, right? Good. So रियल लाइफ में कहां लगता है, अब रियल लाइफ की जब बात करोगे आप,
तो मैं आई विल फर्स्ट कीप दिस एज इट इज, आई डोंट वांट यू टू, लेट्स कीप दिस फॉर यू। तो ये काम में आएगा अपने को आगे डायरेक्शंस का। अब रियल लाइफ में कहाँ लगता है, आप जब अर्थ पे चलते हो, धरती पे चलते हो, और आपको पता होगा देयर आर कंपास, कंपास जो आपको डायरेक्शंस बताती है। आपको ये भी पता होगा अगर ये ईस्ट डायरेक्शन है तो ईस्ट को अपोजिट वेस्ट है, ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ है, ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज साउथ है, दिस इज साउथ डायरेक्शन। ओके, तो अब ईस्ट को मैं हमेशा पॉजिटिव एक्स मान के चलता हूँ, वेस्ट को मैं हमेशा नेगेटिव एक्स मान के चलता हूँ, नॉर्थ को मैं हमेशा पॉजिटिव वाई और साउथ को मैं नेगेटिव वाई मान के चलता हूँ। तो ईस्ट डायरेक्शन आपका हो गया आई कैप, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है एक्स डायरेक्शन मतलब आई कैप, राइट। वेस्ट डायरेक्शन आपका हो गया माइनस आई कैप, नॉर्थ डायरेक्शन आपका हो गया जे कैप, और साउथ हो गया माइनस जे कैप, राइट। तो देखो अब रियल लाइफ में कैसे कनेक्ट करते हो। अब अगर आपसे किसी ने पूछा होता कि मुझे वहां जाना है, मुझे उस पर्टिकुलर मार्केट में जाना है, और आपको पता है कि वो मार्केट ईस्ट डायरेक्शन में है, आपको पता है कि वो मार्केट यहाँ से 2 किलोमीटर ईस्ट में है, राइट, और आपको फिजिक्स पता है, उसको भी फिजिक्स पता है, तो आप उसको कुछ ज्यादा नहीं समझाओगे, यू विल नॉट टेल हिम अ लॉट। ये नहीं बोलोगे हाँ यहाँ जाओ फिर ये बिल्डिंग दिखेगा, फिर वहां से आगे जाओ, फिर यहाँ जाओ, फिर लेफ्ट लो, फिर राइट लो। आप बोलोगे 2 किलोमीटर आई कैप, बात खत्म। बट यस, सामने वाले को भी फिजिक्स पता होना चाहिए, he or she should understand what you are trying to say, okay, right। मैं तो ऐसा ही करता हूँ, I mean I just say go 2 किलोमीटर आई कैप, सामने वाले को समझा तो ठीक, किसको बताना पड़ता है अरे ईस्ट में जाओ, या फिर -2 किलोमीटर आई कैप, 2 किलोमीटर वेस्ट में जाओ। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज, राइट। तो अब देखो कहां से शुरू किया था हमने, हमने शुरू किया था फिजिकल क्वांटिटीज के क्लासिफिकेशन पे, स्केलर जिसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए सिर्फ एक नंबर की जरूरत है। ओके, वेक्टर नंबर के साथ मतलब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए। फिर हम लोग आ गए टाइप ऑफ वेक्टर्स पे, फिर हमने नल वेक्टर डिफाइन कर दिया, रिजल्टेंट वेक्टर डिफाइन कर दिया, नेगेटिव वेक्टर डिफाइन कर दिया, इक्वल वेक्टर डिफाइन कर दिया, यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दिया। लेकिन यूनिट वेक्टर जब डिफाइन कर रहे थे तो एक इंटरेस्टिंग चीज हमको समझ में आ गई कि यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो किसी एक डायरेक्शन में पॉइंट करता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 है। मतलब मैं इसका यूज कर सकता हूं टू टेल डायरेक्शंस। ओके, सो लेट अस फर्स्ट राइट डाउन दैट वी यूज of course I cap, जैसे मैंने बताया we use I cap as unit vector along x-axis, unit vector along x-axis, we use j cap along y-axis, and we use k cap along z-axis. Just a minute. So we use j cap as a unit vector along y-axis, and we use k cap as a unit vector along z-axis. कितना इंटरेस्टिंग हो गया, एकदम सिंपल। ओके गुड। तो वेरी क्विक रिवीजन, क्यों चाहिए यूनिट वेक्टर? डायरेक्शन बताने के लिए चाहिए। क्या होता है यूनिट वेक्टर? वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड 1। अब मेरे पास ऐसा वेक्टर है ही नहीं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, पर मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है
राइट। फॉर एग्जांपल ए बार, मुझे ए बार की डायरेक्शन बतानी है, तो मैं क्या बोलूंगा, ए बार को उसी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर लो, और वेक्टर divided by its own magnitude is called as unit vector in that direction. So a vector having unit magnitude in a given direction is called as unit vector in that direction. ये एक definition है. Alternate definition कैसे बना सकते हो? So alternate definition of unit vector. Alternate definition of unit vector. A vector divided by its own magnitude, its own magnitude is a vector, is a unit vector. Okay, simple case. Now let us start with vector operations. अब ये वेक्टर के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, तो आई विल इंट्रोड्यूस ओनली वन वेक्टर ऑपरेशन टुडे. जैसे कि आप दो नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्केलर, नंबर मतलब स्केलर ना, तो जैसे आप दो स्केलर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हो. वेक्टर के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, तो पहला ऑपरेशन, वेक्टर ऑपरेशन में पहला मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर. मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए बार, आप जो चाहो नाम दे सकते हो. आपको ए बार पसंद नहीं, आप पी बार बोल दो, आपको पी बार पसंद नहीं, आप क्यू बार बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो आई हैव अ वेक्टर पी बार एंड आई हैव अ नंबर एस. पी बार ये वेक्टर है, एस ये स्केलर है. तो अगर मैं इस स्केलर को एस को पी बार से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा. सो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर एस with a vector p bar gives you a new vector with its magnitude s times of the original vector. Okay, so simple है, multiplying a vector p bar by a scalar s gives a new vector say q bar which has the same direction of p bar but magnitude s times of p. तो मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, नंबर के साथ बहुत अच्छा समझ में आता है. हमारे पास एक वेक्टर है p और एक स्केलर है नंबर, मतलब नंबर 10 है. अगर मैं इस स्केलर s को वेक्टर p से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ, 10p बार. 10p बार मतलब ये नया वेक्टर है जो p बार का 10 टाइम्स है. p बार का 10 टाइम्स है, मतलब डायरेक्शन तो p बार का ही है लेकिन मैग्नीट्यूड 10 टाइम्स ऑफ p बार है. फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ. अभी कि कल का ही न्यूज है, आज सुबह का ही न्यूज है, मिल्खा सिंह पास्ड अवे. सो यू मस्ट नो कि ही वाज अ रनर, है ना. तो अब मैं एग्जाम्पल तो रेसिंग का. सो फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू runners, those who are running in the same direction. Okay, in the same direction, right. अब ये है नंबर 1 जिसका वेलोसिटी है v1 बार, ये है नंबर 2 जिसका वेलोसिटी है v2 बार. सो द थिंग इज, अब मान लो वेलोसिटी ऑफ v2 मतलब सेकेंड जो रनर है उसका वेलोसिटी v1 के कंपैरिजन में 3 टाइम्स है. तो क्या लिखोगे आप, v2 वेक्टर is 3 times of v1 वेक्टर. मतलब क्या किया आपने v1 वेक्टर को एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आपको नया वेक्टर मिल गया.
नए वेक्टर का वेलोसिटी मतलब उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो यही होता है जब आप इन जनरल एक वेक्टर p बार को एक नंबर से स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो यू गेट अ न्यू वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड इज s टाइम्स ऑफ द इनिशियल वेक्टर। ओके, तो बहुत सिंपल सा केस था ये। तो इसको लिखेंगे कैसे? वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल थिंग। यू विल से मल्टीप्लाइंग a vector p bar by a scalar s gives a new vector, say q bar, which has the same direction of p bar but same direction as that of p bar is better to say as that of p bar but magnitude s times of p bar, but magnitude s times of p bar. That's all about multiplication of a vector by a scalar. एक वेक्टर को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, that's it. So that's sufficient for today. We will stop here for today, and with more vector operations we'll continue in the next session.